एवरीबॉडी टू अनदर वीडियो। आज हम एक रिएक्शन वीडियो देखने वाले हैं, मतलब वीडियो देखने वाले हैं जिसपे मैं रिएक्ट करने वाला हूं, जो होने वाली है PS5 Pro की अनबॉक्सिंग और फर्स्ट लुक। देखो, अभी तक ये कंसोल इंडिया में तो लॉन्च हुआ नहीं है, तो एक इंटरनेशनल क्रिएटर है जिसको मैं बहुत देखता हूँ, जिसका नाम है स्पॉन पॉइंट। इसका काफ़ी कंटेंट मैं देखता रहता हूँ, रील्स, शॉर्ट्स और मेन वीडियोस वाला। तो आज हम इसी की एक वीडियो देखने वाले हैं जिसने पूरी PS5 Pro को अनबॉक्स और फर्स्ट लुक और ओपिनियंस दिए हैं। देखते हैं क्या रिएक्शन आता है। मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ इस कंसोल में, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने के बाद काफ़ी लोगों ने बोला था, भाई तुमने PS5 Pro एक जो कंसोल वाली डाली थी उसमें PS5 Pro को इनडायरेक्टली मेंशन किया था, मतलब डायरेक्टली भी बोल सकते हो। तो उसमें मैंने ये बोला था कि यार देखो, इतना नेगेटिविटी है नहीं जितनी दी जा रही है। मुझे मेरे पर्सपेक्टिव में इतना बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना भी कोई गलत कंसोल मुझे नहीं लगता निकाला है। पर मुझे अब सुनने में आ रहा है कुछ लोगों से कि एक्चुअली अभी भी 4K 30 पे ही गेम चल रही है। जो फाइडेलिटी मोड था उसमें रे ट्रेसिंग ऑफ कर दी गई है। कुछ ऐसा सा एक कंट्रोवर्सी मैंने सुनी है। मैं इस पे कोई भी एक्यूजेशन नहीं दे सकता, बिकॉज मैंने वो प्रॉपरली नहीं सुनी है। मे बी वो ये बंदा वीडियो में मेंशन करे कुछ, तो लेट्स सी क्या बोलता है। Taking a first look at the brand new PS5 Pro, which launches later this week, and I am hyped to get this unboxed and show you. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले ही बता देता हूँ, PS5 Pro का डिज़ाइन मुझे डिसेंट लगा, इतना कोई खास नहीं लगा, पर ठीक है। PS4 और PS4 Pro में भी बहुत एक लाइन एक्स्ट्रा का ही फर्क था कि वो एक और स्टेप थोड़ी बल्कियर डबल डेकर लगने लग गई थी। वो नॉर्मल लगती थी पहले, तो मेरे को कोई डिजाइन में इतनी प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। You guys around. So a huge thank you to PlayStation for sending this out to me early so I could make today's video. प्लीज अगली वीडियो फिजिकल हो जाए प्रोडक्ट के साथ, ठीक है? गलत मत लेना इस बात का मतलब, प्लीज मुझे भी भेज दी जाए। But before we jump in, drop a like on this video and subscribe if you want to see more PS5 Pro videos on the channel. Okay, and here it is. So the first thing you'll notice is the box is black instead of white like we had on the original PS5 and the PS5 Slim. And that's because this is a digital console. But don't worry, I will explain later on how you can add a disk drive to the Pro, as I did pick up one of these a couple of weeks ago. So we've got the PS5 Pro image on the front, along with the new Pro label on the logo. Then around the back, we've got a... By the way, मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे याद है, जो मैंने शायद वीडियो में भी बोली थी, $700 with that extension ये पड़ेगा console. Another image of the console and the controller, with some extra information about the specs and the console details. Oh, and not forgetting, this is the first PS5 console to ship with a 2TB SSD. Oh, nice. So that's a really nice upgrade to see. And then to give you an idea on the size of this box, here it is compared to the original PS5 box. So you can see it is surprisingly smaller than that. And then again, alongside the newer Slim PS5. And I'm actually amazed at how similar in size it is to the Slim box. I wasn't expecting it to be this small. But anyway, let's get this opened up and see what we get. Okay, so first up we have the accessories on the top. This includes an HDMI cable, which is an HDMI 2.1 cable for your full 4K 120Hz bandwidth. Then we have the power cable and a USB-C cable, which has a USB-C on both ends. Now this is what you'll use to charge your controller, as when you buy a second controller they do not come with a cable in the box. There's also a quick start guide and warranty information, which, let's be honest, no one ever reads, although we probably should. Okay, so एक चीज जो इसमें डिफरेंस मुझे लगी, मेरे को स्लिम का याद नहीं है, शायद स्लिम में भी ये चेंज हो। इसके अंदर एक जो डिफरेंस मुझे सबसे मेन लगा, एक तो 2TB वाला SSD का है, और दूसरा ये है कि जो मेरे पास वायर है, तो ये वायर जो है वो C टाइप टू C टाइप नहीं है। ये ऑफिशियल सोनी की वाले जो बॉक्स में आई थी, ये C टाइप टू USB-A है। अब पता नहीं ये इंडियन वाली ही सिर्फ USB-A है या इंटरनेशनल वाली भी USB है, नो आइडिया। पर मे बी इंडियन कंसोल में भी अगर C टाइप टू C टाइप आ जाती है तो वो एक बेटर ऑप्शन है, बिकॉज हमारी प्ले स्टेशन पर एक C टाइप पोर्ट भी है, और आई थिंक इस पे USB इन्होंने हटा दिया होगा, बिकॉज मैं USB पोर्ट सिर्फ चार्जिंग के लिए यूज़ करता था। हालांकि मैं कभी कभार अपने ये वाले हेडफोन्स का अडेप्टर कनेक्ट करने के लिए यूज़ करता था USB पोर्ट। तो आई डोंट नो, मे बी देखते हैं कि हटाया या नहीं हटाया। We've got a couple of plastic feet, and this is to lay the PS5 मुझे बहुत down बकवास and the लगता है DualSense controller. मैं स्टैंड यूज नहीं करता हूँ, मेरे पास स्टैंड रिमूव्ड पड़ा हुआ है, बिकॉज मेरे टेबल पे ही पड़ी होती है और मैं स्ट्रेट ही खड़ी करके रखता हूँ बिना किसी स्टैंड के। मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। स्टार्टिंग में स्टैंड यूज करता था, अब 1 साल होने वाला स्टैंड हटाए हुए, कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं है मुझे। और रही बात इस कंसोल की, एक चीज़ और जो मुझे बतानी है वो ये बतानी है, इस कंसोल को बिना किसी फैट मॉडल की बात कर रहा हूँ, ये वाली स्टैंड के बेटर लगती है। ये स्टैंड मुझे बहुत बकवास लगता है। इस स्टैंड को देखकर मुझे वाइब आती है कि अगर मैं थोड़ा सा अपना कंसोल दबा दूंगा ये टूट जाएगा। ये बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं लगता मुझे।
This is a standard controller like we've had before, so it's no different in terms of its features. But no here's change. the model code on the back in case Same. you wondered what it was. So as you can see, it's CFI-ZCT1. And here it is. This looks like an absolute beast, yet it's slimmer than I was expecting. So it clearly has the same overall look as the normal PS5, but as you can see, it's more like the PS5 Slim in terms of its shape and its design. Now, a little bit later, I will compare the three consoles side by side, but on first impressions, this looks nice. So we've got the four white removable covers on the side, with one corner showing the PlayStation logo, and then on the bottom corner, we've got these little PlayStation icons as well. And this is what keeps it flat when you lay it down. And then just like we've seen before, it does have the Sony logo on the inside, and those tiny little PlayStation icons built into the texture. But the biggest visual change here on the Pro is of course the new thicker vents across the middle. So instead of a gap like we had on the Slim, this surely I guess help करेगा performance में. मतलब PS5 heat या temperature problem तो मुझे फैट में कभी आई नहीं है, पर I guess कि इसका फैन बस और noise फ्री चले. ऐसा ना हो इन्होंने फैन के अंदर मॉड्यूलेशंस करी हो. मे बी ये खोल के भी दिखाया. What appears to be three large plastic lines or vents across the middle. I guess you'll either love or hate them, but I think it certainly gives it a more aggressive look to what we've seen before. It also breaks up the whole white panel on the side. And then looking around the front, we've still got the same black glossy finish to the centerpiece, and no doubt a few of you will wrap the or horizontally. Now I use it both ways, as on my desk I have it stood up, whereas in my living room I actually have it laying down. And as I showed earlier, inside the box it does come with these little plastic feet that you will need to use it when laying it down. But all you need to do is slot them into the holes on the side and it will lift the PS5. ये मुझे बिल्कुल भी satisfying नहीं लगता ये stand. Anyways, it's sold separately, but Pro was going to be a similar height to the original PS5 while the same width as the slimmer PS5. Okay. मुझे लगा but it is still a little bit, clunkier version or a squeezed version of original PlayStation, because ये slim से बड़ा लग रहा है but original से छोटा लग रहा है, so it is good. But अभी भी I would say one thing on the realistic point of view, मेरे cousin के पास PlayStation Slim है, बहुत slim है वो, I agree, पर मेरे को जो ऑफिशियल PlayStation 5 फैट मॉडल है उसका डिज़ाइन सबसे बेस्ट लगता है. नॉट बिकॉज वो मेरे पास है, जस्ट बिकॉज उसमें अनवांटेड लाइन वाइन नहीं है, उसके कवर्स रिप्लेसेबल हैं, उस पर स्किन चढ़ाना बहुत आसान है बिकॉज मैंने चढ़ा रखी है कैप्टन अमेरिका की शील्ड वाली स्किन. दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मुझे वो ज़्यादा बेटर लगता है. उसके कवर्स बहुत ईजीली स्वैप हो जाते हैं, इनके कवर्स 4 पीसेज में आएंगे. बहुत अजीब है ये. मैं उल्टा रखता तो मुझे अगर ये उल्टा होता तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता, हालांकि फिर मेरे पास स्लिम वाली आ जाती. पर स्लिम का डिज़ाइन ओरिजिनल प्लेस्टेशन का होना चाहिए था. उसके बाद प्रो वाला जो है वो अब जो फैट मॉडल है वो होना चाहिए था. आई थिंक अगर किसी को समझ आ गया हो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो. And that's exactly how I would a footprint than before. Okay. And talking of the covers, as you can see, it does come with 4 removable covers on the side. And just like with the Slim, you can pop these off in order to change them, fit an SSD drive, or install the disk drive. So firstly, I don't think so SSDs किसी को यूज करने की जरूरत पड़ेगी. नॉर्मल यूजर को, अगर कोई क्रिएटर होगा जो इसी पर रिकॉर्ड करता होगा, जो अगेन एक बहुत कम चांस वाली बात आ जाती है, क्योंकि मैं भी रिकॉर्ड करता हूँ बट मेरे पास रिगाटो है, तो उसी को 2 TB से ज़्यादा पे जाना पड़ेगा. मैं 1 TB की SSD लगवाने की सोच रहा हूँ. अगर लगवाता हूँ तो उस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा. Even though the PS5 Pro does not come with a disk slot, a question that a lot of you asked me last week. Already I don't think so launch हुए होंगे. Console covers. I think slim वाले ही console covers लग जाएंगे. NVMe SSD up to 8 terabytes, which means on top of the 2 terabyte fan, I think ये बड़ा है थोड़ा. मेरे को लग रहा है ये फैन थोड़ा सा बड़ा वाली साइड है, rather than if we talk about the normal one, उससे थोड़ा सा बड़ा है ये. I think मुझे लग तो रहा है. बाकी देखते हैं. You could have a 10 terabyte beast here. I'm also going to test out if swapping the NVMe from my other PS5 will work on here without needing to download all of the games again. That's really As for the specs, because let's face it, that's the real reason you want to upgrade to the Pro. Well, here's what it's packing. So the storage, as mentioned, is now a 2. या बट ये बाकी चीजें गाइस तुमने खुद देख ली होंगी आई गेस. जो उस ये वही फुटेज है जो ट्रेलर की थी, ओरिजिनल ट्रेलर की. सो आई डोंट थिंक सो दैट्स अ बिग डील. गेम प्ले वाले सेगमेंट में थोड़ा देखते हैं. This is huge for PS5 players. It means we won't need to choose between visual and performance, as we can have both.
Also, they've added a game boost to 8,500 PS4 games, so this should make those games look even better than ever, but I do need to test a few of these out. And then this is the full specs as included in the box. So कुछ गेम्स जो ऑफिशियली रीमेक या रीमास्टर नहीं हुई हैं उनका भी मैंने वर्जन देखा है ट्विटर एंड ऑल पे, थोड़े एक्स पे फोटोज वगैरह लीक हुई थी, सो आई थॉट कि मैं थोड़ा चेकआउट करूं। और मैंने देखा है कि ब्लड बॉर्न वगैरह जो ऑफिशियली रीमेक नहीं हुई हैं उनकी विजुअल क्वालिटी एंड शायद फ्रेम रेट भी इम्प्रूव हुए हैं। It's got the same CPU as the base PS5. ये पत्र क्या है देखने। But for now, that was a quick unboxing and first look at the new PS5 Pro. So over the next few days, I'm going to get this set up and download. I think full review में ये ही बोलेगा ये that you should buy it or not, that's the biggest point. But तो मैं ये बता सकता हूँ कि you should buy it or not. But मेरे perspective से I would say that don't buy it until and unless you are a graphics whore. मतलब you want every inch of graphics, you want every detail जो मैं नहीं हूँ। मैं अपने कंप्यूटर पे RTX 2060 पे भी आज भी बहुत सारी AAA गेम्स खेलता हूँ और मज़े से एंजॉय करता हूँ बिकॉज उनमें 50 to 60 फ्रेम रेट्स आज भी मिल जाते हैं। सो अब ये वाला पर्सपेक्टिव उन पे आ जाता है कि क्या तुम्हें इतनी डिटेल्ड, या क्रिएटर हो, क्रिएटर वाले पर्सपेक्टिव से शायद मैं खरीद लूँ अगर चैनल की ग्रोथ अप्रोप्रिएटली मुझे लगेगी, वो पॉइंट हो सकता है। बिकॉज मुझे लगता है PS5 की वजह से मैं काफ़ी गेम्स का कंटेंट चैनल पे कवर कर पा रहा हूँ जो मैं शायद नॉर्मली ना कर पाता, तो वो पर्सपेक्टिव अलग हो जाता है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, माय टाइम, बाय बाय, सी यू साइन ऑफ, पीस आउट। मेरा ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का एक रिएक्शन वीडियो था जस्ट बिकॉज मैं प्ले स्टेशन और कॉन्सोल और इन सब टेक के रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा एंथुजियास्टिक रहता हूँ। तो मैंने कहा ये वीडियो मैं वैसे भी देखने वाला था तो एक कंटेंट पीस बना देता हूँ जिसमें थोड़ा सा मैं अपना ओपिनियन भी दे देता हूँ। हालांकि ये फर्स्ट लुक था, अगर मैं इसको प्रॉपर रिव्यू देखता इसका और ये होता, अगर तुम चाहो तो मैं फुल रिव्यू भी देख सकता हूँ, या इसके कोई और चैनल का तुम चाहते हो कि कंटेंट मैं ऐसे रिव्यू करूँ टेक बेस्ड वाला, तो हम कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर तुम लोगों को Xbox का कंटेंट भी देखना है मेरे चैनल पे तो मुझे बताना, लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन बिलो, देखते हैं। बाय बाय, सी यू साइन ऑफ, पीस आउट।